Hello viewers, I am Deepti. Now in continuation with the solving of section B of Mathematics ICSE class 10 today's paper of 2023. Question 4 part 1 is matrices are given A, B and C and identity matrix I is also given as a square matrix, unit matrix. Now find A, B plus C minus 14I is the question. So A is 1, 2, 3, 4 and then B plus C. B plus C means we have to add these two. 1 plus 4, 5, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3 and 4 plus 4, 9. This is B plus C. Minus 14I. 14, 0, 0, 14. Now multiplying these two, it is 5 plus 3, 3, 9, then 3, 9, 3, 27. Then second row 5 to 10 plus 4 3 12, then 3 to 6 and 9 4 36 minus 14 0 0 14. Now 9 and 5 is 14 and 27 and 3 is 30. This is 22 and this is 42 minus 14 0 0 14. It means 14 minus 14, first element is 0. 30 minus 0, it means 30. And then 22 minus 0, it means 22. 42 minus 14, it is 42 minus 14, it is 28. So 0, 30, 22 and 28. This is our answer of fourth question, part 1. आई होप ये आपका ठीक होगा. मैट्रिसेस में अगर कहीं गलती के चांसेस हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान से चेक कर सकते हैं. तो दिस इज अवर आंसर विच इज ऑफ 3 मार्क्स. Now coming to part 2 of question number 4. Part 2 is ABC is a triangle whose vertices are A minus 1. ABC is the triangle. So A के vertices हमें 1 और minus 1 coordinates दिए हुए हैं. B के 0 and 4 are given and C minus 6 and 4 are given. Okay. Now D is the midpoint of BC. Here D is the midpoint of BC. It means these two are equal. BD and DC are equal. Now find the coordinates of D. So for coordinates of D equal to, we know how we calculate midpoint. X1 plus X2 divided by 2. It means 0 minus 6 divided by 2 and 4 plus 4 divided by 2. माइनस 6 यहाँ इसके लिए क्योंकि 6 माइनस का था, अदरवाइज हमने प्लस ही करना होता है. 0 minus 6 divided by 2 and 4 plus 4 divided by 2. It means minus 3 by 2 and 4 and 4 8 divided by 2. It means minus 3 by 2 and 4. So these are the points. Sorry, this will also cut. Minus 6 by 2 it means 3. Minus 3 and 4 and 4 8 divided by 2 means 4. So minus 3 and 4 are the coordinates of D. Now in second part we need to find the equation of median AD. This is our median AD. We need to find the equation of this. For AD we have 2 points now. A is given as 1 and minus 1 and D we have just calculated minus 3 and 4. So first of all we need to find the slope of this median AD. Now for slope we know m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So what is the value of y? It is 4. 4 minus minus means plus and then minus 3 minus 1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. It means 5 upon 4 minus 5 upon 4. This is the slope. This is the slope of this line AD. And we need to find the equation of this line. So for equation, slope is this. We can take any of these points. Either of these points you can take. So y minus y1. Suppose I am taking this much. This one y minus y1. This is y1. Y minus y1 is equal to m x minus x1. So y plus 1. This 4 will come to this side. Minus 5x and then minus minus plus 5. So 4y plus 4 is equal to minus 5x plus 5. It means हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 4y और 5x भी इधर ही आ जाएगा. 5 minus 4 equal to 1.
1 को इस साइड में भी ले सकते हैं. 4y plus 5x is equal to 1. This is the equation of this median AD. This is our B part of question number 2. A part, find the coordinates of D. अगर आपने यहाँ तक ठीक किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने इक्वेशन स्लोप निकाल दी है, यहाँ पर आपको फर्स्ट मार्क मिल जाएगा. यहाँ पर अगर आपने स्लोप ठीक निकाली है, सेकंड मार्क मिल जाएगा. और अगर आपकी इक्वेशन ठीक है तो आपको थर्ड मार्क भी मिल जाएगा. तो इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होती है पेपर में. अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप उस हिसाब से भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. In third part, circle is there. In this circle, this is a secant and this is our tangent. O is the center of the circle. Here, O is the center of the circle. O के साथ भी हमारे पास लाइंस ड्रॉ हैं. यहाँ पर डॉटेड लाइंस दी गई हैं हमें यहाँ पर टच करती हुई इस तरह. और एक लाइन ये कॉर्ड एक और हमें दी गई है TB. दिस PA, दिस इज 9 सेंटीमीटर गिवन. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इसको ज्वाइन भी किया गया है AT को. लेकिन ये ध्यान रखना है AT को ज्वाइन किया है. AT हमारा डायमीटर नहीं है बिकॉज इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर. अगर AT डायमीटर होता सेंटर से पास करो तो यहाँ डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल होगा. कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलत भी किया होगा, लेकिन ये डायमीटर नहीं है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. PQ इज द टेंजेंट. दिख ही रही है आपको PQ. दिस PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट T. कॉर्ड AB आपको दिखाई दे गई है जिसको हमने आगे बढ़ाया है. T पॉइंट पे मीट कर रही है. AB की वैल्यू 9 दी हुई है. BP की वैल्यू 16 भी दी गई है. BP की वैल्यू 16 सेंटीमीटर भी दी गई है. नाउ एंगल PTB इज 50 डिग्री. एंगल PTB इज 50 डिग्री. ओके, तो आपने थ्योरम तो पढ़ी ही हुई है. क्या है? एंगल मेड with by a tangent and a chord. तो उसी chord का जो हमारा alternate segment में बनेगा वो एंगल इक्वल होगा. इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा ये कितना होना चाहिए हमारे पास. ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी हमने करी हुई है टेंजेंट और सर्कल के साथ, और ये मैंने अभी अपने लाइव सेशन में भी पूरी करी थी. जो आपका डाउट सेशन लिया था उसमें भी ये पूरी हुई थी. तो यहाँ पर हमारा ये एंगल 50 डिग्री का बन जाएगा. इसके अलावा इसने हमें पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कहा है. और एक और एंगल OBA हमें 45 दिया गया है. यहाँ पर भी OBA is given as 45 degree. Now coming to first part which is length of PT. तो लेंथ के लिए हम बहुत सिंपल से जो हमारे पास थ्योरम है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB. ये वाली थ्योरम लगाएंगे कि स्क्वायर ऑफ टेंजेंट PA इंटू PB के इसके लेंथ ऑफ सेगमेंट्स के इक्वल होता है. PA की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 9 + 16 इट मीन्स 25. और PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 आएगा. यहाँ से PT की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी विच इज इसका अंडर रूट यानी कि 20 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ PT इज 20 सेंटीमीटर PT. नाउ इन सेकेंड पार्ट एंगल BAT. एंगल BAT, BA and T. एंगल BAT अभी मैंने आपको बताया इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट सेगमेंट. आप पूरा स्टेटमेंट जब तक नहीं दोगे टीचर नंबर नहीं देगा आपको, ये मैंने पहले भी बताया है. यहाँ ये एंगल बना रही है टेंजेंट और ये कॉर्ड, इसका अपोजिट यहाँ पर ये टेंजेंट, यही कॉर्ड सेम यहाँ पर एंगल बना रही है 50 डिग्री. तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट मेड बाय द सेम कॉर्ड. तो यहाँ पर ये हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा. सी पार्ट में BOT हमने कैलकुलेट करना है. BOT, एंगल BOT. अब BOT के लिए हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है. BOT जो है ये यहाँ सेंटर पे बन रहा है. इसके लिए हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये एंगल कितना हो जाएगा, जितना ये BT आर्क जो है वो यहाँ बना रही है 50 और ये सेंटर पे बना रही है, तो हमें पता है ना उसका डबल हो जाता है. तो BT इज इक्वल टू 2 into 50 इट मीन्स 100. और यहाँ पर आपने देना है, रीजन जरूर देना है, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क अदर इन अदर पार्ट ऑफ द सर्कल. यहाँ पर रीजंस के साथ अपने आंसर्स देने हैं. लास्ट एंगल हमने ABT निकालना है. ABNT, सॉरी ABNT, ये एंगल हमने निकालना है. तो अब यहाँ पे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के लिए हम ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कि हाँ टेंजेंट है तो टेंजेंट सर्कल का जो रेडियस आ रहा है
उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ ये 50 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। 40 हो गया। दोनों तरफ रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों रेडियस है, एक एंगल 40 तो दूसरा भी आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से 40 हो जाएगा। इट मीन्स ये एंगल भी हमारे पास 40 निकल जाएगा। तो ये 40 हो गया और ये 45 हो गया। तो टोटल एंगल यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 40 प्लस 45, इट मीन्स 85 डिग्री। मैंने पूरा स्टेप लिखा नहीं है, एक स्टेप यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। आपने ये लिखना है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी है 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 50 है तो 90 माइनस 50 करके आप इस तरह से ऐसे दिखाएंगे इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप नाम देंगे यहाँ पर BTO, एंगल BTO जो है वो 40 है। जब BTO 40 है तो यहाँ से OBT भी 40 हो जाएगा, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 85 आपका ये एंगल आएगा। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 तो ओवर हो गया। अब हम 5 पे जा रहे हैं। यहाँ तक का कोई आपका डाउट था तो आप क्लियर कर सकते हैं। स्टेप्स भी बता रही हूँ, मार्क्स भी बता रही हूँ। 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर और 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक पार्ट का एक एक मार्क है। अगर एक पार्ट कोई गलत हो भी गया तो टेंशन नहीं लेनी है, 1 मार्क ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जीएसटी का क्वेश्चन है। और अब आप बताइए जीएसटी का कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। मैं जब लाइव सेशन ले रही थी मैं बार बार कह रही थी जीएसटी के बाकी पार्ट्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मत जाइए, बट आपने पता नहीं मेरे को कहना सुना या नहीं सुना। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमने आइटम्स दी हुई हैं। हेयर ऑयल थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो इसके अंदर। हेयर ऑयल का दिया हुआ है और नट का दिया हुआ है, ठीक है, कैश्यू नट्स का दिया हुआ है। तो रुपीज इसका 1200 दिया है रेट और इसका 600 दिया गया है, रुपीज में आ गया। इसके बाद इस पे डिस्काउंट भी है, तो मैं डिस्काउंट को पहले लिख रही हूँ यहाँ पर ताकि हमारी गलती ना हो। तो डिस्काउंट का 100 रुपीज इसमें है, इसमें नहीं है। और जो रेट ऑफ जीएसटी है ये हमारा यहाँ पर 18% दिया है और यहाँ पर हमारे पास 12% दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल जीएसटी पेड हमने यहाँ पर निकालना है। जीएसटी पेड के लिए आपको एमआरपी पे निकालना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एमआरपी कितनी निकल जाएगी, हम पहले फर्स्ट आइटम यानी कि हेयर ऑयल का ही ले रहे हैं, फिर बाद में सेकेंड आइटम का ले लेंगे। बार बार लिखने में अभी नहीं लिखूंगी। एमआरपी हेयर ऑयल का हो गया, कितना हो गया 1200 माइनस 100, इट मीन्स इट इज 1100 रुपीज। 1100 रुपीज हो जाएगा। जीएसटी इज 18%, so 18% of rupees 1100, it means 18 upon 100 into 1100. 0 will get cancelled. 18 into 11, it is rupees 198. Okay, now in second part GST is in cashew nuts, MRP is rupees 600, no discount, so GST is equal to 12%. 12% of 600, it means 12 upon 100 into 600, कितना हो जाएगा 12 6 72 रुपीज। तो ₹72 इसका जीएसटी आ जाएगा। अब कमिंग बैक टू ए पार्ट। ए पार्ट के लिए हमें क्या दिया गया है, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। ए पार्ट के लिए हमने टोटल जीएसटी निकालनी है। तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, फर्स्ट इन द केस ऑफ hair oil it is 198 and then 72, so total GST paid is rupees 270. Rupees 270 is the GST paid. Now B part. B part means total bill amount. Total bill amount is टोटल जितना हमने मनी पे किया, कितना मनी पे किया हमने, इसका कितना पे किया 1100 प्लस इसकी जीएसटी कितनी दी हमने 198 प्लस दूसरा आइटम का हमने 600 पे किया और उसकी जीएसटी 72 रुपीज। इफ यू वांट यू कैन ऐड दीज टू फर्स्ट एंड देन यू कैन ऐड द जीएसटी, वो वैसे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो हमारे पास आ जाएगा 1298 और प्लस 672, इट मींस 1970 रुपीज। 1970 इज द जीएसटी पेड बाय द कस्टमर विच इज मिसेज अरोड़ा हेयर इन दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। दिस इज ऑल्सो ए 3 मार्कर क्वेश्चन। अगर आपने जीएसटी पेड ठीक निकाला है एक स्टेप में तो 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर और तीसरा टोटल अमाउंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ये 3rd नंबर मिलेगा। आंसर की हम सपोज कर सकते हैं मे बी 1 नंबर ऊपर नीचे वेरी हो जाएगा, बट दिस इज फॉर 1 मार्क, दिस इज फॉर 1 मार्क एंड दिस टोटल बिल अमाउंट इज फॉर लास्ट 3 मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। Part 2 in which we have to solve the following inequation. Inequation is given
as -5 x minus 9 greater than and equal to 17 minus 9x x plus 2 and x belongs to real number. Write down the solution set and represent it on the real number line also. तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन भी बनानी है. तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं. कितना आ जाएगा? -5x प्लस 9 5 45 और यहाँ पर ये 17 माइनस 9x, ये एक तरफ का हो जाएगा. इन सेकेंड पार्ट 17 माइनस 9x इज ग्रेटर देन x प्लस 2 सेकेंड पार्ट. नाउ 9 will come to this side. 9 minus 5 it means 4x and then 17 minus 49. So 4x is greater than 17 minus 9 5 45. This is 45 and this is also 45. 17 minus 45 is minus 28. So x is greater than and equal to -7 आ जाएगा. यहाँ पे आपके एक नंबर आ गया. यहाँ पर फिर से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. 1 mark you will get for this right value. Then for second mark 17 minus 2 is on this side, transposing x and plus 9x on that side. This is 10x and this is 15. So 15 upon 10, it means x is less than 3 upon 2. Or you can also write 1 upon 5 because this is a real number. Now on number line, overall पहले solution set क्या हो जाएगा इसका? x is greater than and equal to किसका है ये यहाँ पर? -7. इससे बड़ा है. और लेस देन किससे है? 1.5 से है. तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा. इस सोल्यूशन सेट को लिखने तक का आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएंगे. इसके बाद जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन पे भी आपका पूरा एक नंबर रहेगा क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन. तो आप यहाँ पर -7 से तो एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे. -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड देन 2. 1 एंड 2 तक हमें मार्क करना पड़ेगा. 1.5 पे नीचे लाइन नहीं है तो हमारा हॉलो सर्कल रहेगा, डार्क नहीं करेंगे. लेकिन 7 वाला सर्कल को आप डार्क करेंगे क्योंकि उसके नीचे इक्वलिटी साइन भी है आपके पास. और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा लाइन को डार्क कर देंगे. नहीं तो आप उसके ऊपर से भी लाइन ले सकते हैं जैसे कई बुक्स में दिया जाता है. तो आपका यहाँ पर सोल्यूशन सेट बन जाएगा. इसको स्केल से अच्छे से डार्क करना है अपने पेंसिल के साथ. तो x is greater than -7 and less than 1.5 and equal to also. This sign is also important. So अगर जिसका नंबर लाइन पूरा ठीक है उसको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे. You need not to worry. अगर नंबर लाइन में कोई प्रॉब्लम भी है तो भी आपका सोल्यूशन सेट बनाने तक के आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाए कि आपका क्या क्या कट सकता है, क्या क्या मिल सकता है. नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लास्ट पार्ट हमारा सिमिलैरिटी से आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड ही था. इस बार सिमिलैरिटी आएगा, ज्यादा मार्क्स का आएगा क्योंकि एक्सरसाइज तो एक ही है लेकिन अच्छी खासी है. अब यहाँ पर फिगर दी गई है आपको. CAB एक ट्रायंगल है आपके पास. ये इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी. यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन आ रही है. इन दोनों को हमने ज्वाइन भी किया है. जहां ये ज्वाइन हो रहे हैं वो F पॉइंट है. ये तीनों लाइंस पैरेलल गिवन है. वैल्यू इज आल्सो गिवन. दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट इज G, दिस इज 16 सेंटीमीटर and this point is E, this is D and this is 16 centimeter and last this is also given as 30 centimeter. So these three are parallel lines. So in first part we need to prove triangle. We will write in triangle GED and triangle GBF. GED and GBF दोनों ट्रायंगल्स आपने ले लिए. अब आप ध्यान से देखिए GED कौन सा है. ये दिखाई दे रहा है आपको GED. ये ट्रायंगल हो जाएगा GED और इधर से हम कौन सा ले लेंगे दूसरा ट्रायंगल GBF. GBF तो ध्यान से अगर आपने देख लिया है तो इसमें हमने प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए आपको पहला एंगल यहाँ दिखाई ही दे रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं. पैरेलल दी हैं तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. तो हम 1 और 2 लिख के इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल दे सकते हैं. इक्वल हो गए. और 3 और 4 बस आप ऐसे लिख देंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आराम से आ जाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास नाम लिखना है आपने, ट्रायंगल GED इज सिमिलर टू ट्रायंगल GBF। बाय नहीं लिखा तो ये भी कैंसिल है, पेनलाइज हो जाओगे अगर नहीं लिखा कि AA एक्सियम से ये हैं सिमिलर। अब आप खुद देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, सिमिलैरिटी में 90% केसेस में जो एक्सियम हम यूज करते हैं वो AA ही होती है। आप देख लीजिए यहाँ पर AA से ही हो रहा है, आगे भी AA से ही होगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें DE फाइंड करने के लिए कहा गया है। DE फाइंड करने के लिए हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में से वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पर मैं पहले ट्रायंगल की GE साइड लूंगी, तो दूसरे की कौन सी आ जाएगी, GB आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसकी ED या DE जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप, ED लेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, BF आ जाएगी। अब आप गिवन साइड में से देखिए हमें कौन कौन सी गिवन है। GE गिवन है यहाँ पर, ये G और ये E है। GE की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। GB की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 16 दी हुई है, 8/16 हो जाएगी। ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ED की वैल्यू नहीं है अभी, ED की तो कैलकुलेट करनी है, जिसको हम DE भी लिख सकते हैं, तो हम DE लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आ जाएगा BF। अब BF की वैल्यू हमारे पास यहाँ 30 दी हुई है, ठीक है। तो अब DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब तो कैलकुलेट हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 8 into 30/16, 8 to 16 and then 15, so DE is equal to 15 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकेंड मार्क भी हमें मिल गया, फर्स्ट मार्क हमारे को मिल चुका था ऑलरेडी, 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास DE की वैल्यू भी आ गई, ये DE है, इसकी वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर ली है। नाउ DB/AB, अभी अभी हमने प्रूफ तो किए ही हैं, लेकिन इसके लिए भी हम एक बार इसको भी प्रूफ करेंगे, इस ट्रायंगल को भी हम ले लेंगे यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी हो जाए। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से ये छोटा ट्रायंगल ये, और फिर ये बड़ा पूरा ट्रायंगल। तो हम ये ले रहे हैं अभी EBD इन ट्रायंगल EBD एंड ट्रायंगल, यहीं से हम CBA भी ले लेंगे। CBA में हमारे पास साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, तो आप साइड प्रोपोर्शन में जब लिखेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई ही दे जाएगा कि हमने कौन कौन सी साइड लेनी है। किस किस साइड को ले सकते हैं आप, यहाँ पर, यहाँ से हमने DE को अगर लिया तो यहाँ से हमारे पास AC हो जाएगा, DE/AC आ जाएगा। और दूसरी साइड में अगर हम BD को ले रहे हैं, BD के साथ हमारे पास यहाँ आ जाएगी BA, तो BD/BA हो जाएगा। अब इनमें से कुछ तो हमारे को गिवन है, चेक करिए क्या हमारे को गिवन है। BD की वैल्यू गिवन है, B है, G है, E है, BD की वैल्यू गिवन नहीं है, यही तो हमने कैलकुलेट करनी है, सॉरी, BD/AB की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है। DE की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, 15 आ जाएगी। और AC की वैल्यू तो 24 गिवन ही है, तो 15/24 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि कट सकता है, तो 3 पे 5/8, तो इसका आंसर आ जाएगा 5:8। This is the answer of C part, DB/AB is equal to 5:8। सेकेंड पार्ट में हमारा DE 15 सेंटीमीटर आ गया, फर्स्ट पार्ट में AA एक्सियम को लगाते हुए हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। सो विद दिस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी ओवर हो गया। अगर आपके सारे आंसर्स ठीक है तो आपके पूरे 10 मार्क्स आपको मिल चुके हैं हर क्वेश्चन के लिए। अगर कोई पार्ट गलत है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ये भी आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसमें आई थिंक इसमें 2 मार्क्स दे सकते हैं, इसका 1 और इसका 1 होगा। आई एम नॉट श्योर, मे बी इसका 1 लेके इसका लास्ट वाले का 2 दे दें, बट 4 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से ही होते। फर्स्ट वाले में आई थिंक 2 होगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सियम शो भी करनी थी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो आराम से आपने कर भी लिया होगा। और मैंने आपको कितनी बार हर वीडियो में ये बात बोली थी कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि मीन मीडियन मॉड बहुत ज़्यादा मार्क्स का आएगा, स्टैटिस्टिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो स्टैटिस्टिक्स में से आप देखिए आपको ओजिव भी आ गया, हिस्टोग्राम भी आ गया, सब कुछ ही निकालने के लिए आ गया है। शॉर्टकट मेथड भी आ गया, मीन भी आ गया। तो देखिए तीनों चीज़ें आ गई, मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया और मोड भी आ गया। 3 चीजें एक ही चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में। जिन स्टूडेंट्स ने ये किया उनको आज पेपर में कोई मुश्किल नहीं आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो मैं आपको ग्राफ की पिक्चर उसमें डाल दूंगी। इसमें हमने आपको पता ही है हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करने हैं, बार लेने हैं आपने, और जहां दोनों ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारा आ जाएगा।
तो मेरा मोड जो है वो 526 आ रहा है, बट आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू नॉट पैनिक। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों तरफ 2 का आपको टॉलरेंस रहती है, तो मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका 25 भी है तो भी ठीक है, 27 भी है तो भी ठीक है, तो इसमें ज्यादा डरना नहीं है। ये बाकी मोड हमारा इसके आसपास आ रहा है, ये मैं पिक्चर में आपको एज इट इज डाल दूंगी, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट फिर से हमारा फेवरेट आ गया एपी। फिफ्थ टर्म एपी की दी हुई है, नाइन्थ टर्म एपी की दी हुई है, हमारे को फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ टर्म दी है मीन्स A5 दिया हुआ है, A5 का आंसर हमें पता है A + 4D होता है, और उसका आंसर हमें गिवन है 4 इक्वल टू 4। और दूसरी तरफ हमें दूसरी कौन सी टर्म दी है, नाइन्थ टर्म इज ऑल्सो गिवन, A9 इज इक्वल टू A + 8D इज इक्वल टू, इट्स वैल्यू इज गिवन एज -12। So first we have two equations, we need to solve these two. First we need A + 4D is equal to 4 and A + 8D. तो सीधा हम, this is first equation, this is second equation, second -1, second -1 उसी के नीचे 1 लिख लेते हैं, is equal to 4। कैंसिल करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 8 - 4 is 4D, -12 - 4 is -16, तो 4D is equal to -16. It means D is equal to -16 divided by 4, it means -4. The value of D is -4, which is common difference of this AP is -4. Now we can put this value of D in either of these two equations. A is equal to 4 minus 4D. D is -4. So 4 minus plus 16. 16 plus 4 is 20. So A is equal to 20. Our first term is 20. Common difference is 4. A part, this is our A part. A part is first term and B part is common difference. Then C part is sum of 16 terms of AP. Sum of 16 term means 16, S16 is equal to n by 2, it means 16 by 2, n by 2, 2A. A is 20, 2A plus 16 minus 1, 15, and D is -4. So 8, 40, 15 into 4, 60. So 8 and -20. It means -160. So -160 is the sum of these 16 terms. So 3 mark का क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 mark for this, second mark for this, and third mark for this. -4, 20 and -160. Now our third part is from coordinate geometry. For this we need to again draw a figure, a rough figure we can draw here, because calculation is main in this part. Third part of question number 6. This is the figure given. A. This is B. This is point B and this is A. This is 4. This is also 4. This is P and ratio is given as 1:3. A and B are the 2 points. In first part, write down the coordinates of A and B. Coordinate of A is, you can write x-axis is 4 and y-axis is 0. So 4 and 0. For B point, x-axis is 0, मतलब x point is 0 and y point is 4. It means 0 and 4. First mark, part A answer is only coordinates of these two. 4, 0 A है और B के लिए 0, 4 B है। ये 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, 1 मार्क मिल जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो 1 मार्क इसी का मिल जाएगा, आपने कोऑर्डिनेट्स ठीक लिख दिए। तो सेकंड पार्ट मेन है, इसमें B पार्ट जो है, P is a point on AP, यहाँ पर आप P पॉइंट देख रहे हैं, such that AP और PB का रेशियो 3:1 है। AP 3 है और PB 1 है, 3:1 है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है आपने। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइन को दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख लो P है, ये B है, ये A है, इस तरह से आपके पास पॉइंट जल्दी आ जाएंगे। तो A में आपके पास 4 और 0 आ गया, B में आपके पास 0 और 4 आ गया, P के आपने निकालने हैं। अभी हम मान लेते हैं कि X और Y है और रेशियो AP वाली साइड में 3 है और यहाँ पर 1 है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला के लिए उधर का रेशियो इधर वाले पॉइंट के साथ लेना है आपने। इधर तो आपको याद ही होगा mx2,
तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसको लेंगे तो आप उसके साथ लेंगे, कुछ रिजिड रूल नहीं है, आप इसको इधर के साथ लेना है, इसको इधर के साथ लेना है। अगर आपने पॉइंट ठीक से लिए हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 के साथ लेती हूँ तो n x2 x1 ले लेते हैं हम पहले, किसी भी एक को पहले आप ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से 3 लिया तो यहाँ से 0 पॉइंट हो जाएगा, mx2 प्लस nx1, इधर मीन्स 1 आ गया और इधर 4 के साथ आ गया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये x का पॉइंट हो गया। सिमिलरली हम y का पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, 3 आ गया तो हमारे पास 4 आ गया, 1 आ गया तो हमारे पास उधर से 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आ जाएगा। कितना हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, यहाँ पर 4 4 हो गया हमारे पास, दूसरी तरफ 4 3 12 हो गया और वो 0 हो जाएगा, 12/4 हो गया। इट मीन्स 1 एंड 3 हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो 1 और 3 हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। दिस इज अवर B पार्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये P पॉइंट के हमने वैल्यू निकाली है, कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 3, तो इसका आपको स्ट्रेट वे एक नंबर पूरा मिल जाएगा। अब हमारा C पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू P। कोई इक्वेशन लेनी हमने जो P से जा रही है और परपेंडिकुलर टू AB। अब ये AB है और इसके परपेंडिकुलर है ये, तो इट मींस हमने यहाँ से ऐसी लाइन लेनी है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का कांसेप्ट सिर्फ इतना है कि हमें स्लोप फाइंड करनी है और उस स्लोप का हमने m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए पहले हम इसी लाइन की स्लोप निकालेंगे जो हमारे पास पता है, यानी कि AB की, फिर उसको हम AB के परपेंडिकुलर कर लेंगे। अब AB की स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कल हमने लाइव सेशन में बहुत बार किया था, ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट मैट्रिक के कितने सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, वही चीजें रहने वाली हैं, चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अब यहाँ से जब हम लेंगे इसकी स्लोप, तो y2 माइनस y1, आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट्स तो आपको दिखाई दे जाएगा, या अगर अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने यहाँ भी ड्रॉ कर लिया है, किसी भी एक को आप y वाले पॉइंट को y2 मान सकते हो। तो मैं 4 को मान लेती हूँ पहले, तो 4 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन 0 माइनस 4, इट मीन्स कितना आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 4, यानी कि -1 स्लोप आ जाएगी। बट उन्होंने क्या कहा है, लाइन परपेंडिकुलर है, व्हेन परपेंडिकुलर लाइंस आर देयर m डैश इज इक्वल टू 1 होता है, इट मीन्स m डैश की स्लोप मेरे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर ये -1 है तो उसको उससे डिवाइड करेंगे तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। m और m डैश की स्लोप का आंसर हमारे पास -1 आना होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है। तो m तो है, m डैश यहाँ से हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आप इसको लाइन इक्वेशन में डालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। कोई भी एक ये वाला पॉइंट लेना है आपने, P से पास करनी है, तो P से पास करने में ये हमारे पास पॉइंट है, तो इसमें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब y माइनस y1 कौन है, 3 है, इज इक्वल टू m क्या है, 1 है, x माइनस x1 क्या है, 1 है। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा सा, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, कितना आ जाएगा, y माइनस x इस तरफ आ गया, -1 है, प्लस 3 उधर चला जाएगा, तो y माइनस x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गई। इसके स्ट्रेट पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये 1 मार्क का है। बी पार्ट में आपका ये निकालना, आपका पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये 2nd मार्क का होगा। स्लोप निकालने तक आपका ये, अगर आपने स्लोप सही से निकाल ली तो ये 3 मार्क होगा, फिर आपने इक्वेशन में ठीक से वैल्यू पुट कर ली तो ये आपका 4 मार्क होगा। तो 1 1 1 1 चारों मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे और आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी ओवर हो गया। अब आई नीड अ लिटिल ब्रेक, फिर मैं बाकी 4 क्वेश्चंस के लिए कुछ देर के बाद आपके पास फिर से कनेक्ट होंगी। थैंक यू।